morning, dear students. I hope you all are well today. So let us start with our next lesson, that is electricity and circuits. So what is electricity? So we use electricity for many of the purposes, like to lighten our house. Okay, so we use electricity for various purposes, like at the night where there is darkness outside, so we use the electricity or the light electricity to for getting the light, and hence doing continuing with our work. And also, if you know, if when we want to take the water up, okay, on the roof, the tank which is fitted, if you want to fill the water in the tank, what do? We use electric motor, right? So, and also other than that, we have so many uses of the electricity. Now where does this electricity come? So if you know a power station where all the electricity is stored, and that power station, it will provide the electricity to each and every house. Okay, but we know sometimes the electricity supply may cut off, right? So there can be certain reasons. Now when the electricity supply gets cut off during night, what do? We use torch. Yes, so we use torch at that time to get the light. So now from where this torch gets the light, how does this torch give us light? So there is a thing, that is electric cell. You must have seen this electric cell. This electric cell which we use in the torch, which gives us light. Now this electric cell we also use in some of the alarm clocks, in the wrist watches also, that small cell which we have, in the transistor, in camera, and yes, so in so many devices we use this electric cell. Now how is this electric cell? What is it about? So this electric cell, if you see, it has at one end it has a metal cap, and on one side it has a metal disc. Okay, so you can see this in the diagram, the above one, which is shown with a positive sign, that is the metal cap. So the metal cap is always, it is called as the positive terminal of the cell. The metal cap is the positive terminal of the cell, and the metal disc which is below, which is shown over here with the negative sign, so that metal disc is the negative terminal of a cell. So any electric cell, it has two terminals, a positive terminal and a negative terminal. Okay, and this electric cell will provide us the electricity. How does it provide electricity? So this electric cell has a chemical which is stored in it, and that chemical is used when we use the electric cell, when it is working. The chemical which is stored in the electric cell, that is being used. और ऐसा टाइम आएगा जब वो chemical है, that will end. Okay, when that chemical will finish inside the cell, then the cell will stop working, because that is because of the chemical only. Okay, so if we see in the electric bulb also, we see there are two terminals, a positive terminal and a negative terminal. और अगर आपने बल्ब को ठीक से देखा होगा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च के बीच में जो बल्ब होता है वो, एंड ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन अ बल्ब द येलो कलर विच एमिट्स येलो लाइट. ओके, एंड ये हाउस आपने देखा होगा, तो वो जो बल्ब होता है उसके अंदर अगर आप देखोगे, देयर इज सम वायर लाइक स्ट्रक्चर, राइट? दैट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट. व्हाट इज दैट कॉल्ड? द फिलामेंट. टॉर्च के अंदर जो लाइट होता है, द बल्ब होता है, इट ऑल्सो हैज़ द सेम थिंग. और हमारे घर में जो एक बड़ा बल्ब होता है विच एमिट्स द येलो लाइट, इट ऑल्सो हैज़ द सेम थिंग. इट हैज़ अ वायर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड एज द फिलामेंट. और जब सपोज आपने टॉर्च को ऑन किया, सो यू कैन सी वो जो फिलामेंट होती है ना, वो ग्लो होती है, एंड हैंस वी गेट द लाइट. सो दिस फिलामेंट गिव्स अस लाइट विच इज़ प्रेजेंट इन द बल्ब. सो दिस फिलामेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी ये फिलामेंट को इलेक्ट्रिसिटी कहीं से तो चाहिए, तो ही वो ग्लो होगी. सो द फिलामेंट इज फिक्स्ड ऑन टू थिकर वायर. टू थिक वायर पे वो फिक्स्ड होती है. ओके, और ये वायर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी भी सप्लाई करता है, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू दैट फिलामेंट. एंड वन ऑफ दिस थिक वायर जो है, इट इज कनेक्टेड टू द मेटल केस विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बल्ब. बल्ब का जो बेस है उसमें यू फाइंड अ मेटल केस, and you also find a metal tip. You will find a metal case and a metal tip. And if you see, there are two terminals, right?
So one terminal is connected to this metal case and another terminal is connected to the okay, so to the metal tip, and दिस इज़ हाउ द ये जो दोनों है, जैसे हमने देखा सेल में 2 टर्मिनल्स होते हैं, वैसे इसको भी 2 टर्मिनल्स होते हैं एंड हैंस द बल्ब विल ग्लो। द सेल जो होता है वो सेल को कनेक्टेड होंगे। ओके, ये जो 2 टर्मिनल है विच वी हैव सीन 2 थिक वायर्स विच आर, एक जो है वो मेटल टिप होता है और एक जो होता है मेटल केस, और इसकी जो 2 वायर है दैट इज कनेक्टेड टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ सेल in the torch, and this is how we get the electricity or the bulb is glue. Okay, now the bulb which is connected to an electric cell, so let us do some arrangement. हमको क्या करना है, बल्ब और सेल एग्जैक्टली कैसे कनेक्टेड है एंड हाउ डू दे एग्जैक्टली वर्क। तो देखो हमने क्या किया, एक सेल लिया, सेल विच हैज 2 टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को एक वायर कनेक्ट की और नेगेटिव टर्मिनल को एक वायर कनेक्ट की। टेक अ वायर विच इज वेयर एट बोथ एंड्स, उसका इंसुलेशन दोनों साइड से निकला हुआ हो तो ही वी कैन जस्ट डू दैट। एंड इफ यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी एट होम, डू नॉट ट्राई इट अलोन, टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट, किसी बड़े का होना ज़रूरी है साथ में, सो दैट दे विल टेल यू हाउ टू हैंडल दिस थिंग्स। ओके, बिकॉज शॉक भी लग सकता है इसीलिए, सो डू नॉट ट्राई दिस ऑन योर ओन। ओके, सो सेल लेना है एक, ऑफ कोर्स वर्किंग सेल, उसके 2 टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल को वायर्स जॉइन कर दो। ठीक है, फिर व्हाट यू नीड टू डू, टेक अ बल्ब। ओके, नाउ द बल्ब विल नॉट ग्लो, सो वी कैन टेक एन एलईडी, क्योंकि बल्ब को वोल्टेज ज़्यादा लगता है, सेल में उतना वोल्टेज नहीं होता है। ओके, ये जो छोटा सेल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं 3 वोल्ट का, सो 3 या 6 वोल्ट, so a LED will work. So here I will call bulb, but you can take LED on that place. Okay, so एक बल्ब लिया, बल्ब के भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, दोनों टर्मिनल्स को दोनों वायर्स हमने कनेक्ट कर दिए। Now you can see as in the arrangement 1, so we have 4 wires, 2 wires which are connected to 2 terminals of the cell and 2 wires connected to 2 terminals of the bulb. अब हमने क्या किया, इन अरेंजमेंट 1 एज यू कैन सी, ये जो दोनों वायर्स है, बल्ब्स के दोनों वायर्स और सेल के दोनों वायर्स, वो एक दूसरे को ज्वाइन कर दिए। यू कैन सी दैट ओके इन द अरेंजमेंट 1। ओके, उसमें एक बात इंपॉर्टेंट है कि बल्ब का पॉजिटिव शुड बी कनेक्टेड टू द सेल का पॉजिटिव और सेल का नेगेटिव शुड बी कनेक्टेड टू बल्ब का नेगेटिव। ओके, तो ये हमको ध्यान रखना है। सो ये जो फर्स्ट कनेक्शन है जिसमें आप करोगे, यू कैन सी द बल्ब ग्लोज। ओके, वी वोंट यूज बल्ब, okay, we'll use LED, but that will glue, that will actually glow in this case. What we will say, that the wires from cells are connected to the bulb. Are they connected? Continue hai path? Yes, the path, okay, it is continue, there is nothing, nowhere there you can see the break, so that is continue. इन अरेंजमेंट 2 हमको क्या करना है, एक कोई भी वायर जो है, दोनों वायर्स वो एक हमको निकाल देनी है। ओके, यू कैन सी दैट इन द डायग्राम। सो वी से दैट द सर्किट इज ब्रोकन, वो सर्किट जो है पूरा, वो जो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड सर्किट, और द कनेक्शन वो एक ब्रेक हो गया है एक जगह पे। नाउ विल द बल्ब ग्लो, नो द बल्ब विल नॉट ग्लो, तो वो पूरा कनेक्ट होना चाहिए तो ही बल्ब ग्लो होगा। फिर सी द नेक्स्ट अरेंजमेंट, दैट इज अरेंजमेंट नंबर 3। इन दैट इस साइड हमने नेगेटिव टर्मिनल का वायर डिस्कनेक्ट किया था, अभी पॉजिटिव टर्मिनल का वायर डिस्कनेक्ट करो और नेगेटिव का कनेक्ट कर दो, तो भी इफ़ यू सी ओवरऑल द कनेक्शंस आर स्टिल ब्रोकन, वी से दैट द कनेक्शंस आर ब्रोकन। देन यू सी द नेक्स्ट अरेंजमेंट नंबर 4, उसमें हमको क्या करना है, बल्ब के जो दोनों वायर्स है वो एक ही सेल के एक ही टर्मिनल को लगा दिए। अरेंजमेंट नंबर 4 में वो नेगेटिव को लगाया है और अरेंजमेंट 5 में वो पॉजिटिव को लगाया है। क्या किया है हमने, बल्ब के जो दोनों वायर्स है वो दोनों एक ही जगह पे लगा दिए सेल के, अदर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो भी सर्किट ब्रोकन है क्योंकि वो कंटिन्यू होना चाहिए जैसे अरेंजमेंट 1 में है। ठीक है, बल्ब के भी दोनों साइड से आना चाहिए और सेल के भी दोनों साइड से आना चाहिए, तो ही वो बल्ब ग्लो होगा। दिस केस ऑल्सो द सर्किट इज ब्रोकन। और अभी आप अगर देखो हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया। ओके, बल्ब को ऐसे कुछ नहीं है, सेल का देयर इज पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, बल्ब में ऐसा कुछ नहीं होता। अभी हमने एक्सचेंज कर दिया, सेल और बल्ब के जो पहले अरेंजमेंट में थे वो हमने बस एक्सचेंज कर दिया, इधर का उधर लगा दिया, तो भी ओके आपने क्रॉस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉरी। बट इफ़ यू सी ओवरऑल जो हमारा कनेक्शन है वो तो पूरा कनेक्टेड है ना पूरा, इसीलिए इन दिस केस ऑल्सो द बल्ब विल ग्लो। यस,
और एक एक्टिविटी करनी है। ये जो हमने देखा ना अरेंजमेंट जो किया हमने, दोनों वायर्स ज्वाइन किए, सो रादर दैन ज्वाइनिंग बोथ द वायर्स हम क्या करेंगे, दोनों वायर्स एक दूसरे को ज्वाइन करने की जगह पे हम क्या करेंगे, उन दोनों वायर्स के बीच में एक पेंसिल लगा देंगे, लिड पेंसिल विच वी यूज़। ओके, ये लिड पेंसिल जो दोनों साइड को शार्प होनी चाहिए, तो उसका लिड, ओके, पेंसिल को वायर के कांटेक्ट में नहीं लाना है, उसके लिड को कांटेक्ट में लाना है, और वो वायर उस लिड को टच करे ऐसा रखना है, ऐसे हमको अरेंजमेंट करनी है। एंड सी वेदर इट ग्लोज और नॉट, द बल्ब विल ग्लो। ओके, बट यू कैन ट्राई, ये ऐसे करना, अरेंजमेंट करो। यहाँ पे 2 बल्ब दिए हैं, 2 बल्ब की ज़रूरत नहीं है, वी कैन यूज़ ओनली 1 बल्ब, किसी भी जगह लेफ्ट और राइट, जस्ट 1 बल्ब एंड द पेंसिल, एंड ट्राई वेदर द बल्ब will use the LED whether it glows or not. Then the electric circuit, अभी मैंने बोला क्या है, ये जो हमने पूरी अरेंजमेंट की है बल्ब और सेल को, हमने पूरी वी हैव जॉइंड इट। ओके, यू कैन सी दैट इन द डायग्राम, बल्ब के दोनों साइड से जो हमने वायर्स ज्वाइन की है, और सेल्स के दोनों साइड से जो वायर्स हमने ज्वाइन की है, एंड अगेन बोथ ऑफ दीज वायर्स आर जॉइंड टू ईच अदर, एंड इन दिस वे you can see a complete circuit, a complete connection. This is called as the circuit. ओके, सो अ सेल, वायर एंड बल्ब, ये बेसिक हो गया, ये हो गया एक बेसिक सर्किट हो गया, और उसको हम सर्किट ये बना के, व्हेन द बल्ब विल ग्लो व्हेन द सर्किट इज कनेक्टेड, अगर वो एक जगह पे ब्रोकन होगा, इफ इट इज ब्रोकन एट वन प्लेस देन द बल्ब विल नॉट ग्लो। कभी कभी क्या होता है, ऑल्दो द सर्किट इज नॉट ब्रोकन, सर्किट बराबर है, सब कनेक्शंस बराबर है, लेकिन फिर भी बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इट मीन्स सिंपल, योर बल्ब हैज़ फ्यूज्ड, बल्ब हमारा फ्यूज हो गया है, इसीलिए द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग। बट अदरवाइज इफ यू विल डू द अरेंजमेंट लाइक दिस, द बल्ब विल डेफिनेटली ग्लो। ओके, तो हमने अरेंजमेंट में देखा, इसी तरह से हमको बराबर से वो क्या करना है, वी शुड सी वेदर द बल्ब इज ग्लोइंग और नॉट। और हमने देखा है, जो हमने देखा कनेक्टेड, इफ द सर्किट इज कनेक्टेड द बल्ब विल ग्लो, इफ द सर्किट इज नॉट कनेक्टेड, कहीं पे बीच में वो निकल गया है, इफ दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ऑल द पाथ शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर, कहीं पे भी किसी भी जगह पे, इफ इट इज ब्रोकन द बल्ब विल नॉट ग्लो। तो बल्ब ग्लो होने के लिए क्या चाहिए हमको, द सर्किट विच इज कम्प्लीटेड, कम्प्लीटली वो कनेक्टेड होना चाहिए, तो ही द बल्ब विल ग्लो। और हमें करेक्ट करंट की डायरेक्शन कैसे बतानी है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, कुछ तो फ्लो हो रहा है उसमें, राइट। सो व्हाट इज फ्लोइंग, द करंट इज फ्लोइंग। अभी करंट क्या है, कैसे फ्लो होता है, दैट यू हैव इन द हायर स्टैंडर्ड, बट फॉर नाउ द करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। कीप इन माइंड द करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ओके, अभी देखो आपने ये ऐसे डेंजर का साइन देखा होगा, कई जगह पे होता है। ओके, जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस है या इलेक्ट्रिक पोल है, ऐसे कुछ अदर प्लेसेस पे यू मस्ट हैव सीन। यस, इट शोज डेंजर, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक सर्किट जो है उसको हाथ लगाना इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि आपको पता है उससे आपको शॉक लग सकता है। इसीलिए आई एम सेइंग whenever you are handling with any electrical device or electricity, you should be very very conscious. Okay, so it is very dangerous, किसी भी तरह की electricity is very dangerous, so we should not touch any electric wire barefooted. Okay, फिर एक क्वेश्चन है कि नेवर जॉइन टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, जो हमने देखे, कुछ किया हमने, सेल लिया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को वायर ज्वाइन किए, और वो दोनों वायर्स डायरेक्टली एक दूसरे को ज्वाइन कर दिए। नो, डू नॉट डू दिस। व्हाट दिस विल डू, दिस विल डैमेज योर सेल। आपके सेल का जो केमिकल है वो फास्टली, वो जल्दी से यूज हो जाएगा, और योर सेल विल स्टॉप वर्किंग, योर सेल विल स्टॉप वर्किंग। सो डू नॉट नेवर ज्वाइन टू वायर्स डायरेक्टली। उन दोनों वायर के बीच में कुछ एलईडी बल्ब कुछ रखो, एंड देन ऑन द सर्किट, ऐसे ही डायरेक्टली सेल को ज्वाइन किया और डायरेक्टली दोनों वायर एक दूसरे को ज्वाइन मत करो। कीप समथिंग इन बिटवीन, इधर वो दोनों वायर्स एलईडी को ज्वाइन करो, बल्ब को ज्वाइन करो, या किसी को तो भी, या पेंसिल को। सो ज्वाइन टू समथिंग, ओके, बट डू नॉट ज्वाइन दोज वायर्स डायरेक्टली। सो दिस इज इट, we will continue with this lesson in the next period. By that time, you take care of yourself, stay home, stay safe. Bye bye.